دھند نے پھر شہر کو دھواں دھواں کر دیا۔ حد نگاہ صفر ہونے پر لاہور سے پنڈی بھٹیاں تک موٹر وے اور ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا۔ ادھر محکمہ موسمیات نے صبح کے وقت مزید دھند اور کم سے کم درجہ حرارت 7.3 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کی پیش گوئی کر دی۔ ہائی کورٹ نے لیڈی ویلنگٹن ہسپتال کی مسماری روک دی۔ پی ٹی آئی کی ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست پر صوبائی حکومت اور سیکرٹری صحت سے 6 فروری تک جواب طلب، جبکہ عدالت عالیہ نے نقشے پاس کرنے کا اختیار ٹاؤن انتظامیہ سے لے کر ایل ڈی اے کو دینے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ محکمہ صحت کا 2000 نرسز کی پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تحت بھرتی کا فیصلہ۔ سروس رولز بے ترامیم کا عمل مکمل ہونے پر بھرتی شروع ہوگی۔ رائے محمد طاہر ڈی آئی جی ایلیٹ فورس پنجاب تعینات، نوٹیفیکیشن جاری۔ ادھر ایس ایس پی آپریشنز رانا عبدالجبار نے 4 ایس ایچ اوز کے تقرر و تبادلے کر دیے۔ غلام عباس برکی، صفدر سجاد فیکٹری ایریا، آصف ذوالفقار کو ایس ایچ او لٹن روڈ لگا دیا گیا، جبکہ ناصر مٹھو کو پولیس لائنز رپورٹ کرنے کی ہدایت۔ ڈاکٹر امجد شہزاد کو میڈیکل سپرنٹینڈنٹ میو ہسپتال لگا دیا گیا۔ ادھر شالیمار ہسپتال میں 20 بستروں پر مشتمل ڈاکٹر منور الدین بورڈ کا افتتاح، چیئرمین بورڈ آف ٹرسٹیز سمیت سینئر ڈاکٹرز اور عملے کی شرکت۔ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان یاسین انور نے استعفیٰ دے دیا۔ عشرت حسین، سلیم رضا، علی رضا میں سے کسی ایک کی تعیناتی کا امکان، فیصلہ کل تک متوقع۔ کسٹم لاہور میں وسیع پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ، تینوں کلیکٹر اور کسٹم انٹیلیجنس کے سربراہ تبدیل کر دیے گئے۔ فضل یزدانی خان کلیکٹر کسٹم پریونٹیو، محمد زاہد کھوکر کلیکٹر اپریزمنٹ اور مکرم جاہ انصاری ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس لاہور تعینات۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، لاہور سمیت صوبے میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ، منصوبے پر 10 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ ادھر وزیر اعلیٰ سے ایرکسن پاور کمپنی کے نائب صدر کی ملاقات، توانائی کے شعبے میں تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال۔ راز کی باتیں عام ہونے لگیں، بجلی خور کس طرح بے نقاب ہوئے، گھر سے بجلی چوری پکڑے جانے پر لائن سپرنٹینڈنٹ ضیاء الحق نے حق ادا کر دیا۔ ایس ڈی او اتحاد کالونی کے گھر سے چوری پکڑی۔ دہشت گردی نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، مریضوں کو مناسب سہولتیں نہیں مل رہی، حکومت کی اب تک کی کارکردگی سے مطمئن نہیں، آئندہ بہتری کی امید رکھتے ہیں۔ چودھری پرویز الہی کی پریس کانفرنس۔ خصوصی عدالت نے شاہدرہ کے 14 سالہ عمر اقبال کے اغوا کے بعد قتل کے مقدمے کا فیصلہ سنا دیا۔ افضل اور ثاقب کو 2 بار سزائے موت، 1 لاکھ جرمانہ، جبکہ اغوا برائے تاوان میں 4 ملزمان کو 2 بار عمر قید اور 30 لاکھ روپے جرمانہ۔ بسنت کے حوالے سے صورتحال واضح نہ ہو سکی، خواجہ عمران نذیر کہتے ہیں بسنت لاہور کا تہوار ہے، چھانگا مانگا متبادل جگہ نہیں ہو سکتی، جبکہ ڈسٹرکٹ لائٹ فلائنگ ایسوسی ایشن کے صدر سلیم شیخ 21 فروری سے 5 مارچ تک چھانگا مانگا میں بسنت کے حوالے سے ڈی سی او قصور کا خط لے کر نیوز نائٹ میں آ گئے۔ پنجاب یوتھ فیسٹیول کے سلسلے میں کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں مقابلوں کا انعقاد، رسہ کشی، فٹ بال، پنجہ آزمائی اور کبڈی میں نوجوانوں نے اپنی اپنی مہارت دکھائی۔ ہائی کورٹ بار میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد، چیف جسٹس ریٹائرڈ خواجہ محمد شریف، ایڈیشنل اٹارنی جنرل نصیر بھٹا سمیت وکلاء کی کثیر تعداد میں شرکت۔ ادھر کریسنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول میں مقابلہ حسن کے رات و نات، جبکہ ایم او کالج میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیمینار۔ اسلام پورہ میں زہیب ریسٹورنٹ کی افتتاحی تقریب، ایم پی ایز خواجہ عمران نذیر، ماجد ظہور کی شرکت۔ ادھر میاں مرغوب احمد نے آوان ٹاؤن میں مسلم لیگ نون کے دفتر کا افتتاح کر دیا۔ بیگم گورنر پروین سرور کا ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ برائے خواتین کا دورہ، ادارے میں مختلف شعبوں میں سکھائے جانے والے ہنر اور معیار کو سراہا۔ بیکن ہاؤس اسکول والٹر روڈ کیمپس میں گرینڈ پیرنٹس ڈے، دادیوں اور نانیوں نے بچوں کو کہانیاں سنائیں۔ ادھر یونیورسٹی آف گجرات لاہور کیمپس میں وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ کے عنوان سے تقریری مقابلے۔ لاہور کا ایک حجام بالوں کی تلاش خراش کے لیے بیک وقت 11 کینچیاں استعمال کرتا ہے۔
DG स्पोर्ट्स उस्मान अनवर का कहना है कि सादिक अली का नाम गिनीज बुक के लिए भिजवाया जाएगा। और कैनेड कॉलेज में इंटरवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, तालिबान की जानिब से शानदार एरोबिक्स का मुजाहिरा। के बाद एकदम धुंध के शदीद बादल छा जाने की वजह से अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को तमाम परवाजों की आमद-ओ-रफ्त के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, जिसके नतीजे में 6 से ज्यादा परवाजें मनसूख, जबकि 25 से ज्यादा परवाजें घंटों ताखीर का शिकार होकर रह गई हैं। एयरपोर्ट इंतजामिया के मुताबिक आने जाने वाले मुसाफिर एयरपोर्ट का रुख करने से पहले इंक्वायरी से राब्ता जरूर कर लें। सिविल एविएशन इंतजामिया के इस्लामाबाद से आने वाली PIA की परवाज 655 के पायलट को इंतजामिया ने लैंडिंग से मना कर दिया, ताहम लाहौर पहुंच जाने पर पायलट ने इंतजामिया की बात को नजरअंदाज करते हुए लैंडिंग की कोशिश की, जिस पर उसे कामयाबी हासिल न हो सकी और पायलट ने परवाज को बहुत महारत के साथ वापस इस्लामाबाद की जानिब रवाना कर दिया। सरे शाम ही धुंध की शिद्दत में इजाफे के बायस मोटरवे को लाहौर से पिंडी भटियां तक बंद कर दिया गया। शहर और इसके गिरदनवा में कई दिन से वक्फे के बाद धुंध ने दोबारा रंग दिखाना शुरू कर दिया। जुमेरात को सरे शाम ही धुंध ने मोटरवे को अपनी लपेट में ले लिया। DIG मोटरवे विसाल फखर सुल्तान के मुताबिक मोटरवे पर लाहौर से पिंडी भटियां तक हद निगाह जीरो होने की वजह से इस हिस्से को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि शहरी लाहौर से इस्लामाबाद जाने के लिए GT रोड को इस्तेमाल करें। हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को लेडी वेलिंगटन अस्पताल की मिसमारी से रोक दिया। अदालत ने सूबाई हुकूमत, सेक्रेटरी सेहत और MS लेडी वेलिंगटन अस्पताल को नोटिस जारी करते हुए 6 फरवरी को जवाब तलब कर लिया है। केस की समाअत जस्टिस एजाज अहमद की अदालत में हुई, जहां PTI की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद और YDA के वकला पेश हुए। वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि लाहौर की आबादी 1 करोड़ से तजावुज कर चुकी है और इसके तनासुब से मरीजों के इलाज के लिए अस्पतालों की तादाद कम है। हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत के लाहौर डिवीजन के हाउसिंग स्कीमों के नक्शे पास करने का इख्तियार LDA को तफवीज़ करने के 2 नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शहजादा मजहर ने केस की समाअत की। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑफिसर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से मुबीनुद्दीन काजी ने दलाइल देते हुए कहा कि लोकल गवर्नमेंट के तरमीमी एक्ट के तहत इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करने को कहा गया है। हुकूमत पंजाब ने कवानीन को नजरअंदाज करते हुए LDA एक्ट में तरमीम करते हुए इसकी हुदूद 3 दीगर अजला शेखुपुरा, ननकाना साहब और कुसूर तक बढ़ा दी हैं। तमाम चूंकि LDA एक्ट में तरमीम की गई है, लिहाजा तमाम इख्तियारात जो हाउसिंग स्कीम्स की मंजूरी के इख्तियारात हैं बल्दियात के TMS के जो एक्सरसाइज करते थे, पूरे लाहौर डिवीजन की TMS के वो इख्तियारात लेके LDA को दे दी। हुकूमत पंजाब और हुकूमत बलूचिस्तान के दरमियान सफाई के निजाम समेत 3 मंसूबों की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ से मारूफ कंपनी एरिक्सन के नायब सदर एंड्रिया पेटी ने वफ्द के हमरा मुलाकात की। तफसीलात के लिए देखते हैं कैसर खोखर की ये रिपोर्ट। मॉडल टाउन में होने वाली दस्तखत करने की तकरीब में वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ, चेयरमैन PND इरफान इलाही, सेक्रेटरी हाउसिंग वसीम मुख्तार चौधरी, DG LDA अहद खान चीमा, कमिश्नर राशिद महमूद लंगड़ियाल, DCO डॉक्टर अहमद जावेद काजी और सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन मोमिन आगा समेत आला हुकाम मौजूद थे। तकरीब के दौरान सॉलिड वेस्ट, अर्बन डेवलपमेंट और पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर में ताउन की 3 याददाश्तों पर दस्तखत किए गए। उधर वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ से मारूफ कंपनी एरिक्सन के नायब सदर एंड्रिया पेटी ने वफ्द के हमरा मुलाकात की। मॉडल टाउन में होने वाली मुलाकात के मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तवानाई तलहा बरकी, मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब पावर डेवलपमेंट बोर्ड और दीगर मुतल्लिका हुकाम भी मौजूद थे। मुलाकात के दौरान तवानाई के शोबे में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना था कि तवानाई बहरान से निपटने के लिए मौसर इकदाम उठाए जा रहे हैं और मुतादिद गैर मुल्की कंपनियों के साथ ताउन के मुआहदे किए गए हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आला मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें लाहौर समेत सूबे में पीने के साफ पानी की फराहमी के मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। सूबाई वजीर हाउसिंग तनवीर असलम मलिक, वाइस चेयरमैन LDA ख्वाजा अहमद हसन, चीफ सेक्रेटरी नवीद अकरम चीमा, चेयरमैन मनसूबाबंदी और तरक्कियात इरफान इलाही, सेक्रेटरी खजाना मोहम्मद जहांसेब खान, सेक्रेटरी हाउसिंग वसीम मुख्तार चौधरी, कमिश्नर लाहौर डिवीजन राशिद महमूद, DCO लाहौर अहमद जावेद काजी और DG LDA अहद खान चीमा ने इजलास में शिरकत की। वज़ीर आला ने कहा कि सूबे के अवाम को पीने के साफ पानी की फराहमी हुकूमत की जिम्मेदारी है और इस मंसूबे पर 10 अरब रुपए खर्च किए जा रहे हैं। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम में लेस्को अफसरान भी जद में आ गए। इत्तेहाद कॉलोनी सब डिवीजन में लाइन सुपरिटेंडेंट और SDO इत्तेहाद कॉलोनी के घरों पर बिजली चोरी पकड़ी गई।
چیف ایگزیکٹو لیسکو ارشد رفیق کی ہدایت پر شہر میں بجلی چوری کے خلاف مہم جاری ہے، جس کے تحت اتحاد کالونی سب ڈویژن نے 18 اکتوبر کو ایئر لائن سب ڈویژن میں تعینات لائن سپرنٹینڈنٹ ضیاء الحق کے گھر پر چھاپہ مارا اور بجلی چوری پکڑ کر لیگل نوٹس جاری کر دیا۔ لیسکو کیوری گراؤنڈ سب ڈویژن کے علاقے والٹن روڈ پر فور سیزنز ریسٹورنٹ سمیت متعدد مقامات پر بجلی چوری پکڑی گئی۔ صارف کنڈے لگا کر بجلی چوری کر رہے تھے۔ سپرنٹینڈنٹ انجینئر مجاہد اسلام بلّہ کی ہدایت پر ایکسین کینٹ چودھری رشید احمد اور ایس ڈی او کیوری گراؤنڈ سب ڈویژن امجد حسین ناگرہ نے مختلف علاقوں میں آپریشن کیا، جس کے نتیجے میں فور سیزنز ریسٹورنٹ سمیت متعدد گھروں میں بجلی چوری پکڑی گئی۔ ایس ڈی او امجد حسین ناگرہ کے مطابق فور سیزنز ریسٹورنٹ میں ڈائریکٹ کنڈا لگا کر بجلی چوری کی جا رہی تھی۔ حکومت پنجاب نے ڈی آئی جی رائے محمد طاہر کو فوری طور پر ڈی آئی جی ایلیٹ فورس تعینات کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ رائے محمد طاہر کو فوری طور پر ڈی آئی جی ایلیٹ فورس کا چارج لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ رائے محمد طاہر پولیس سروس کے 21ویں کامن سے ہیں اور اس وقت تقرری کے منتظر تھے۔ وہ اس سے قبل ڈی آئی جی آپریشنز لاہور بھی تعینات رہ چکے ہیں۔ لاہور کا ایک حجام ایسا بھی ہے جو بالوں کی تراش خراش کے لیے 1-2 نہیں بیک وقت 11 کینچیاں استعمال کرتا ہے۔ صادق علی ورلڈ ریکارڈ بنانے کے لیے بھی پرعزم ہے۔ دیکھتے ہیں اس نوجوان کے فن کا کمال عامر رضا خان کی رپورٹ پر۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں اپنے کام کا عملی مظاہرہ کرتا نوجوان صادق علی بال کاٹنے کے لیے بیک وقت 11 کینچیاں استعمال کرتا ہے۔ حجام صادق علی نے اپنے کمال فن کا عملی مظاہرہ بھی کیا، جسے ڈی جی سپورٹس پنجاب عثمان انور نے بھی دیکھا اور اس کے فن کو سراہا۔ ڈی جی سپورٹس کا کہنا تھا کہ صادق علی جیسے نوجوانوں کے لیے سپورٹس بورڈ جیسے ادارے بنے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان کا ہنر بہت اچھا ہے، اس کا نام گینیز بک کے لیے بھجوایا جائے گا۔ اس قسم کے جتنے بھی یوتھ ہیں جن کے پاس ٹیلنٹ ہے، جو ہڈن ٹیلنٹ ہے جس کا کسی کو پتہ نہیں تھا، آج حکومت پنجاب نے یوتھ فیسٹیول کے ذریعے ان کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے۔ ہم ان کو پورا سپورٹ بھی کریں گے، ان کا ایونٹ بھی انشاءاللہ کنڈکٹ کرائیں گے۔ صادق علی کا کہنا تھا کہ اس سے قبل اسرائیل اور چین کے باربر نے 10 چھوٹی کینچوں سے ریکارڈ بنایا، جسے وہ توڑنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہیں موقع دیا گیا تو وہ 11 نہیں 12 یا 13 کینچوں سے بیک وقت ریکارڈ بنائیں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ میری کوشش ہے کہ میں ورلڈ ریکارڈ یہ توڑوں، اس کو بیٹ کروں اور میں نام گنیز بک میں آئے اور ورلڈ ریکارڈ میں بناؤں میں۔ صادق علی اکیلا نہیں، اس جیسے کئی نوجوان آج بھی اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے کام کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ لاہور کا صادق علی پرعزم ہے کہ اسرائیل اور چین کا بنایا گیا 10 کینچوں کا ریکارڈ وہ 11 نہیں 12 یا 13 کینچوں سے توڑے گا۔ کیمرامین زاہد شفیع کے ساتھ عامر رضا خان، سٹی 42۔ اجمیری یونیورسٹی میں تھیم پیس آف مائنڈ کے تحت پرپل ڈے منایا گیا، جس میں طلبہ طالبات نے پرپل کلر کے لباس سے بتن کر کے خوب رنگ بکھیرے۔ ثقافتی پرفارمنس نے فیسٹیول کو 4 چاند لگا دیے۔ سعدیہ رانا کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ گرو مانگٹ روڈ پر واقع حجویری یونیورسٹی میں منائے گئے پرپل ڈے میں طلبہ و طالبات نے ذہنی سکون کی علامت پرپل کلر کو زیب تن کیا۔ اس موقع پر طلبہ و طالبات کا کہنا تھا کہ وہ فیسٹیول سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں اور پرپل کلر پہن کر وہ سوسائٹی کو ایک مثبت پیغام دینا چاہتے ہیں۔ تھیم آف ڈے از ٹوٹلی پیس آف مائنڈ۔ بہت اچھا لگ رہا ہے ہم لوگوں کو، آئس کو بھی اٹریکٹ کر رہا ہے اور موسم کے لحاظ سے بھی ہمارے جو پالیٹیشینز ہیں ان کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر ہم اکٹھا ہو سکتے ہیں ایک جگہ پہ دین یو پیپل کین ڈو، آپ لوگ بھی اکٹھا ہو کے اس ملک کے لیے کچھ کر سکتے ہو۔ رنگ برنگے غباروں سے سجے فیسٹیول میں طلبہ و طالبات کی ثقافتی پرفارمنس نے امن اور بھائی چارے کا پیغام دیا۔ ڈائریکٹر یونیورسٹی فہد شیخ کا کہنا تھا کہ پرپل ڈے منانے کا مقصد طلبہ کو انٹرٹینمنٹ فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرے کو یہ پیغام دینا بھی ہے کہ اس افراتفری کے دور میں ہمیں ذہنی سکون کی اشد ضرورت ہے۔ اس کا مقصد جو ہے وہ آج کل جو ملک میں مایوسی ہے اور جو مہنگائی ہے اور جو سارے معاملات چل رہے ہیں، یہ ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ ان معاملات سے ہٹ کر تھوڑی پازیٹیوٹی ایک دوسرے کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ذہنی سکون کی علامت پرپل کلر کو پہن کر طلبہ نے نہ صرف سوسائٹی کو مثبت پیغام دیا بلکہ موسم کی مناسبت سے زیب تن کیا گیا پرپل کلر آنکھوں کو بھی خوب کھلا محسوس ہوا۔ کیمرامین عدنان علی کے ساتھ سعدیہ رانا، سٹی 42۔ چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ فروری تک قافلے کی تنظیم سازی مکمل کر لی جائے گی، جبکہ مارچ میں تمام ونگز کے کنونشن منعقد ہوں گے۔ مسلم لیگ ہاؤس میں چودھری پرویز الہی کی صدارت میں جماعت کا تنظیمی اجلاس منعقد ہوا، جس میں چودھری ظہیر الدین خان، محمد بشارت راجہ، شیخ عمر حیات، ذوالفقار
फीमल कामरान और सैयदा माजरा जैदी समेत दीगर ने शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि तालिबान के साथ नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए वज़ीर आज़म की जानिब से ऐलान करदा कमेटी के लिए टाइम फ्रेम लाजमी है। कस्टम लाहौर में वसी पैमाने पर अखाड़ प्रचार, तीनों कलेक्टोरेट से कलेक्टर और कस्टम इंटेलिजेंस की कमांड तब्दील कर दी गई। फजल यज़दानी खान कलेक्टर कस्टम, प्रेजेंटिव मोहम्मद जाहिद खोकर कलेक्टर अप्रेजमेंट और मुकरम जाह अंसारी डायरेक्टर कस्टम इंटेलिजेंस लाहौर तैनात कर दिए गए। FBI ने कलेक्टर कस्टम प्रेजेंटिव लाहौर जुनेद अकरम का तबादला करके नेशनल मैनेजमेंट कोर्स से वापस आने वाले ग्रेड 20 के अफसर फजल यज़दानी खान को कलेक्टर कस्टम प्रेजेंटिव लाहौर तैनात कर दिया। इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन RTO लाहौर की कार्रवाई, 1.5 माह में स्टील इंडस्ट्री से 30 करोड़ रुपए से जायद टैक्स वसूल कर लिया। इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन जराये के मुताबिक लेस्को के रेवेन्यू ऑफिसर्स और स्टील मुलजिमान की मिली भगत से लाहौर में अरबों रुपए की टैक्स चोरी की जा रही थी और इनसे टैक्स वसूली महकमे के लिए सवालिया निशान बन गई थी। RTO लाहौर के डिप्टी कमिश्नर इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन रजा इशफाक, इंस्पेक्टर मियां अब्दुल क़य्यूम, मलिक कैसर, राना एजाज और सदीक सालिक ने स्टील सेक्टर में कार्रवाइयां करके गुज़श्ता 1.5 माह के दौरान 30 करोड़ रुपए से जायद टैक्स वसूली कर ली है। शेराकोट और नोनारिया के मकीनों की सुनी गई सुनौदरन गैस पाइपलाइन कंपनी ने इलाके में गैस प्रेशर बढ़ाने के लिए 2000 मीटर लंबी 4 इंच की नई पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया है। शेराकोट और नोनारिया में गैस प्रेशर कम होने से मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है, जिस पर गुज़श्ता माह इलाका की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस पर महकमा सुई गैस से शेराकोट से नोनारिया चौक तक 2000 मीटर की नई 4 इंच गैस पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया। रुकन सूबाई असम्बली ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि कैंची स्टॉप पर ताजरों के भूख हड़ताली कैंप में सियासी अवामिल कारफरमा हैं। इस्लामपुरा में ज़ुहैब रेस्टोरेंट की इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें MPA माजिद ज़हूर, मलिक फुरकान गयास, मलिक इफ़े, मलिक मानी, अतीक भट्ट, अरशद भट्टी, चौधरी ज़हूर, मियां परवेज, मलिक असद, मलिक जाहिदुल हसन, खालिद चौधरी और मियां हसन समेत दीगर अफराद ने भी शिरकत की। इस मौके पर सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि शहर में जारी तरक्याती मंसूबों के बायस ताजरों को दरपेश मसाइल से मुताल्लिक मुज़ाकरात और ताउन के लिए वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ ने कमेटी तश्कील दे दी है। इंस्पेक्टर जनरल पंजाब पुलिस खान बेग ने CCP रावलपिंडी और DPO शेखुपुरा के ओहदों पर तैनाती के लिए पैनल मंजूरी के लिए वज़ीर आला को इरसाल कर दिए। IG की जानिब से SSP बाबर सरफराज और DPO शेखुपुरा हमायूं बशीर तारिर को CPO रावलपिंडी तैनात करने की समरी वज़ीर आला को भिजवाई गई, जबकि SSP मोहम्मद अली नेकोकारा और SSP फैसल अली राजा को DPO शेखुपुरा तैनात करने के लिए पैनल इरसाल कर दिया गया है। वज़ीर आला की मंजूरी के बाद इन अफसरान में से 2 की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी होगा। ब्यूरोक्रेसी अवाम के मुंतखब नुमाइंदों पर हावी हो गई। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 के सामने सेक्रेटरी दाखिला की मुसलसल अदम हाजिरी पर मेंबरान ने बरहमी का इजहार किया। पंजाब असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 के चेयरमैन डॉक्टर मुख्तार अहमद की ज़ेर सदारत इजलास में जुमेरात के रोज भी महकमा दाखिला के ऑडिट पैरा पर गौर किया गया। इजलास में कवायद के मुताबिक सेक्रेटरी दाखिला ने कमेटी के सामने पेश होकर अपने महकमे के ऑडिट पैरा का जवाब देना होता है। इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स की भर्ती के लिए इंटरव्यूज का सिलसिला आज चौथे रोज भी जारी रहा। सिविल सेक्रेटेरिएट में एडिशनल डायरेक्टर इंटेलिजेंस के ओहदे के लिए होने वाले इंटरव्यूज में 5 फौज के लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के 67 अफसरान उम्मीदवार थे। इंटरव्यू लेने वाली कमेटी में IG पुलिस खान बेग, सेक्रेटरी दाखिला मेजर रिटायर्ड आसिम सुलेमान खान और सेक्रेटरी सर्विसेज सैयद मुबशर रजा समेत दीगर आला अफसरान शामिल थे। SSP ऑपरेशन राना अब्दुल जब्बार ने शहर के 4 थानों के SHOs के तकर्रुर तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं। SSP ऑपरेशन राना अब्दुल जब्बार ने SHO फैक्ट्री एरिया नासिर मिट्टू को तब्दील कर दिया है और उन्हें पुलिस लाइन्स रिपोर्ट का हुक्म दिया है। SHO बल्किस अफजल सज्जाद को तब्दील करके SHO फैक्ट्री एरिया तैनात कर दिया है। इंस्पेक्टर गुलाम अब्बास को SHO बल्कि और आसिफ जुल्फिकार को SHO लिटन रोड तैनात किया गया है। अफसरान के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात लाहौर कैंपस के जरिए तमाम वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग के उन्वान से तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा तालिबात ने कसीर तादाद में शिरकत की। हरबंसपुरा में वहां के यूनिवर्सिटी कैंपस में मुनक़िदा होने वाली तकरीब में शौकत उमर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि चेयरमैन यूनिवर्सिटी मियां फरद अली, ऑर्गेनाइजर अतिया डार, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन फरक अवान, प्रोफेसर बुशरा सानी और हम्माद हैदर समेत शुरका ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
प्रोफेसर एजाज अहमद, लेक्चरर गुलनाज और मिस फरजाना ने जजेस के फराइज सर अंजाम दिए। तलबा तालिबात ने वजूद ज़न से तस्वीर कायनात में रंग पर तकारीर करके हाजिरीन से खूब दाद वसूल की। इस मौके पर शुरका से बात करते हुए चेयरमैन मियां फरहत अली ने कहा कि तकरीब के इनेकाद का मकसद बच्चों में खुद एतमादी पैदा करना है ताकि वो अमली जिंदगी में कामयाब हो सके। तकरीब के इख्तिताम पर नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तालिबात में इनामात तकसीम किए गए। बाकी 130 एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स को ग्रेड 16 में सेकेंडरी स्कूल टीचर के ओहदे पर तरक्की देती है। महकमा तालीम ने 130 एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स को सेकेंडरी स्कूल टीचर के ओहदे पर तरक्की दी है। तरक्की पाने वाले असातिज़ा में बशीर अहमद, नासिर अहमद, कारी नूर अहमद, मोहम्मद अली, मोहम्मद अनवर, अजमल परवेज, कारी फैज रसूल, गफूर अली, मोहम्मद रफीक, शेर मोहम्मद आसिफ, अमानुल्लाह, मंजूर अहमद, मोहम्मद असलम, अमानत अली, मोहम्मद अली, मोहम्मद असगर, काजी मोहम्मद अकरम, सैयद तनवीर हुसैन, महबूब आलम, मोहम्मद याहिया, मोहम्मद आसिफ, फरद खातून, फखरुन्निसा, आसिया खातून, खुर्शीद अख्तर, नगीना अकरम और फरा नबीला को भी सेकेंडरी स्कूल टीचर बना दिया गया है। वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुजाहिद कामरान की जानिब से लाहौर एजुकेशन रिपोर्टर्स एसोसिएशन के एजाज में तकरीब मुनक्किद की गई। उनका कहना है कि 50 कनाल जमीन निजी कंपनी को कानून के मुताबिक लीज पर दी जा रही है। पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस में मुनक्किद होने वाली तकरीब में लाहौर एजुकेशन रिपोर्टर्स एसोसिएशन के सदर अरशद भट्टी, जनरल सेक्रेटरी सैयद सज्जाद काज़मी, नायब सदर अकमल सोमरू, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हाफिज एजाज बशीर, फाइनेंस सेक्रेटरी जहीर अब्बास और इंचार्ज विमेन विंग हिफ्जा यास्मीन ने शिरकत की। मंझान यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में कामयाबी हासिल करने के 5 आसान तरीके के मौजू पर एक रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। टाउनशिप में मुनक़िदा वर्कशॉप में चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डॉक्टर हुसैन मोहिउद्दीन, जनरल मैनेजर राबिया अली, असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर दाहिर शकील, डीन ऑफ इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट साइंस एजाज सिंधु, नासिर इकबाल और दीगर ने भी शिरकत की। बीकन हाउस स्कूल वॉल्टन रोड कैंपस में ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया गया। बुजुर्गों ने बच्चों को कहानियां सुनाई, जबकि बच्चों ने मुख्तलिफ गानों और खाकों पर परफॉर्म करके बुजुर्गों को खराज तहसीन पेश किया। सज्जाद भट्टा की यह रिपोर्ट। बीकन हाउस स्कूल वाल्टन रोड कैंपस में ग्रैंड पेरेंट्स डे मनाया गया, जिसमें हेड मिस्ट्रेस शादिया अंजम, तहमीना लोधी, असातिज़ा, बच्चों के दादा दादी, नाना नानी और वालिदैन भी मौजूद थे। ग्रैंड पेरेंट्स डे पर बच्चों को शेर और चूहा, मछेरा और कोइन फिश और लालची कुत्ते की कहानी सुनाई गई। Why is the lion roaring? Then again a voice came. दौरान तकरीब बच्चों ने मुख्तलिफ गानों पर फन का मुजाहरा किया और टैबलो भी पेश किए, जिस पर हाल में मौजूद तलबा और वालिदैन लोटपोट होते रहे। बच्चों का कहना था ग्रैंड पेरेंट्स डे में आकर इन्हें बहुत अच्छा लगा है, ऐसी तकरीबात होनी चाहिए। इस मौके पर बच्चों को कहानियां सुनाने वाले कौसर शरीफ, नसीम खान, जिया राना और जवेद अहमद खान को फूल पेश किए गए। असातिज़ा का कहना था बच्चों को पेरेंट्स डे के जरिए बुजुर्गों के अदब और इनके साथ मेलजोल का सबक दिया गया। इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव था इसीलिए था कि जिस तरह ग्रैंड पेरेंट्स ने अपने बच्चों को पाला है, उनकी इम्पोर्टेंस, उनकी जो भी वो हमें सजेशंस देते हैं वो उन बच्चों तक पहुंचे। जिस तरह ग्रैंड पेरेंट्स अपने पोते पोतियों, नवासे नवासियों से करते हैं, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से करते हैं, बच्चों को भी उसी तरह उनसे प्यार करना चाहिए। बच्चों को गैर निसाबी सरगर्मियों के साथ बुजुर्गों से मोहब्बत और इनकी मदद का दर्ज देना एक खुशैन इकदाम है। कैमरामैन अली नुमान के साथ सज्जाद भुट्टा, सिटी 42। क्रिकेट चैंपियनशिप का किनेर कॉलेज में आगाज हो गया। हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन सैयद इम्तियाज केलानी मेहमान खुसूसी थे। राना जनूर की रिपोर्ट तक पर। टूर्नामेंट का अफ्ताह चेयरमैन एचजीसी सैयद इम्तियाज रानी ने रंगाना गुब्बारों को हवा में छोड़कर किया। इस मौके पर तालिबात की जानिब से रोबस का शानदार मुजाहरा किया गया, जिसे शायकीन ने खूब पसंद किया।
चैंपियनशिप में जुमेरात के रोज 2 मैच खेले गए, जिसमें शहर की टीमों ने एकतरफा मुकाबले के बाद फतह हासिल की। पहले मैच में अकनियत कॉलेज ने बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी को 207 रन के मार्जिन से शिकस्त दी। मेहमान टीम सिर्फ 20 रन बना सकी। दूसरे मैच में लाहौर कॉलेज और रूमा यूनिवर्सिटी ने शोगदा यूनिवर्सिटी के खिलाफ 10 विकेटों से फतह हासिल की। तालबात ने इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद होना चाहिए, जिससे उन्हें तारुदान होने का मौका मिलता है। हमें बहुत मजा आया, प्राउड टू बी अ चीयर लीडर। हम कनेड को मिस करते हैं क्योंकि बिल्कुल स्कूल जैसी एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ और होती हैं। गेम्स आपको सिखाती यही है कि किस तरह आपने मेहनत करनी है, आगे बढ़ना, किस तरह कंसंट्रेशन से काम करना। इस तरह की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए स्टडीज़ के साथ साथ। 6 रोज तक जारी रहने वाली चैंपियनशिप में मुल्क भर से 11 टीमें शिरकत कर रही हैं। टूर्नामेंट का फाइनल 4 फरवरी को खेला जाएगा। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ राना अजहर, न्यूज़ सिटी 42। पंजाब यूथ फेस्टिवल में कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज के माबैन खेलों के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम होने वाले मुकाबलों में शहर की तमाम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज ने शिरकत की। रस्साकशी के मुकाबले में वापता एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव सोसाइटी ने कामयाबी हासिल की। फुटबॉल मैच में लारिक्स ने इकबाल 11 को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। बाबर अली फाउंडेशन इंटर स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप डीपीएस ने जीत ली। फाइनल में दिलचस्प मुकाबले के बाद पायलट हाई स्कूल वहादत रोड को शिकस्त का सामना करना पड़ा। अली इंस्टीट्यूट फिरोजपुर रोड में मुनाकिद होने वाले इवेंट के फाइनल में डीपीएस ने पायलट सेकेंडरी स्कूल वहादत रोड को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त दी। डीपीएस की जानिब से मैच का पहला गोल मोहम्मद अली ने स्कोर किया, जिसके बाद पायलट सेकेंडरी स्कूल वहादत रोड की जानिब से आबिद खान ने गोल स्कोर करके मैच 1-1 गोल से। साथ के बतौर मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट न्यू अस्पताल तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एमएस न्यू अस्पताल के असामी गुज़श्ता कई माह से खाली थी, जहां डॉक्टर अमजद शहजाद को फौरी तौर पर जांच संभालने की हिदायत कर दी गई। डॉक्टर अमजद शहजाद इससे कबल एमएस जनरल अस्पताल तैनात थे। शालीमार अस्पताल में 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल डॉक्टर मुनव्वरुद्दीन वार्ड का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज समेत सीनियर डॉक्टर्स और अमले ने शिरकत की। शालीमार अस्पताल में अतिये से बनने वाले 20 बेड पर मुश्तमिल डॉक्टर मुनव्वरुद्दीन वार्ड का इफ्तिताह एतजाज मुनव्वरुद्दीन ने किया। इफ्तिताही तकरीब में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के चेयरमैन चौधरी अहमद सईद, चौधरी शाहिद हुसैन, इब्रार ए मुमताज, ब्रिगेडियर रिटायर्ड अनीस अहमद, प्रोफेसर डॉक्टर अहमद वसीम यूसुफ और प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद बशीर समेत डॉक्टर्स और अमले के अरकान ने शिरकत की। दूसरी जानिब महकमा सेहत ने 2000 नर्सेज की रेगुलर बुनियादों पर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत ग्रेड 16 में भर्ती का फैसला कर लिया है। सर्विस रूल्स में तरामीम का अमल होने पर भर्ती शुरू होगी। सरकारी अस्पतालों में नर्सेज की 3000 से ज्यादा खाली आसामियों को पुर करने का अमल शुरू कर दिया गया है। महकमा सेहत ने पहले मरहले में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए ग्रेड 16 की नर्सेज की 2000 पोस्टों पर भर्ती का फैसला किया है, ताकि नर्सेज की रेगुलर बुनियादों पर भर्ती की जा सके। महकमा सेहत की जानिब से पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत आसामियों पर भर्ती के लिए सर्विस रूल्स में तब्दीली भी की जा रही है। डिस्ट्रिक्ट काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के सदर सलीम शेख 21 फरवरी से 5 मार्च तक छांगा मांगा में वसंत मनाने के लिए डीसीओ कसूर का खत लेकर न्यूज नाइट में आ गए, मगर मुस्लिम लीग नून लाहौर के जनरल सेक्रेटरी ख्वाजा इमरान नजीर का कहना है कि चीफ सेक्रेटरी ने वसंत के फैसले को रोक लिया है। अब एक मरतबा फिर वजीर आला के पास जाना पड़ेगा। तफसीलात के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। सिटी 42 के प्रोग्राम न्यूज नाइट में महफूज बसंत मनाने के लिए जारी क़वायद और ज़वाबित पर बहस में जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नजीर, सदर काइट फ्लाइंग एसोसिएशन शेख सलीम और कॉलिम नवीज और समाजी रहनुमा चौधरी मोहम्मद अकरम ने शिरकत की। चौधरी अकरम का कहना था कि बसंत लाहौर का त्यौहार है, छांगा मांगा की बसंत इसका मुतबादल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि मियां शहबाज शरीफ में इतनी सलाहियत मौजूद है कि वो बसंत को महफूज बनाने के लिए हुकूमती रिट मनवा सके। उन्होंने इस अमर पर भी जोर दिया कि लाहौर के तमाम 26 अरकान सूबाई असम्बली और 13 अरकान कौमी असम्बली इस पर गौर करें कि लाहौर का हुस्न और रौनक कैसे बहाल हो सकती है कि गरीब के त्यौहार को सरमायादार ने तबाह कर दिया है। सलीम शेख ने कहा कि जिले हुकूमत कसूर की तरफ से 30 जनवरी से ड्रोन की तैयारी के लिए अड्डे लगाने की इजाजत दी गई थी, पर अब अगर इसमें ताखीर की जाती है तो उनके साथ करीब साथियों के लाखों रुपए डूब जाएंगे जो उन्होंने कर्ज लेकर और माओ बहनों के जेवर बेचकर अपने कारोबार के लिए खर्च किए हैं। वो इस पर भूख हड़ताल भी कर सकते हैं और बसंत लाहौर में मनाने का ऐलान भी कर
कर सकते हैं। सलीम शेख ने कहा कि छांगा मांगा बसंत मनाने में भी बहुत सारी मुश्किलात हैं। वहाँ का फॉरेस्ट पार्क लाखों लाहौरियों के लिए बहुत छोटा है और सड़कें भी ट्रैफिक का बोझ उठाने के काबिल नहीं। उन्होंने कहा कि अगर नजरसानी करनी है तो उस पर की जाए कि बसंत लाहौर में हो। ख्वाजा इमरान नजीर का कहना था कि फिलहाल बसंत मनाने की इजाजत का फैसला रोक लिया गया है। हो सकता है कि 2-4 दिनों में या एक हफ्ते तक फैसला हो जाए और इसके लिए एक मरतबा फिर वज़ीर आला पंजाब से रिजू किया जाएगा और गाइडलाइन ली जाएगी। प्रोग्राम के मेजबान नजम वली खान का कहना था कि सिटी 42 लाहौरियों के त्यौहार बसंत को महफूज तरीके से मनाने की भरपूर हिमायत करता है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सुहेल चौधरी का कहना है कि जिन शहरियों के पास कॉपी वाला ड्राइविंग लाइसेंस है वो कंप्यूटराइज करवा लें ताकि उनका रिकॉर्ड कंप्यूटर में महफूज किया जा सके। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर सुहेल चौधरी ने कहा है कि डोर टू डोर लाइसेंसिंग पॉलिसी के तहत शहरी अब कॉपी वाले ड्राइविंग लाइसेंस से कंप्यूटराइज ड्राइविंग लाइसेंस के हुसूल के लिए सिटी ऑफिस के अलावा डीएचए फैसिलिटेशन सेंटर भी जा सकते हैं। माह जनवरी के दौरान 770 शहरियों ने ड्राइविंग लाइसेंस के टेस्ट के लिए अप्लाई किया। साइन टेस्ट और लोड टेस्ट में 130 शहरी फेल जबकि 640 उम्मीदवार पास हुए। बेगम गवर्नर पंजाब परवीन सरवर का कहना है कि इंसानी वसाइल की तरक्की और पेशा वाराना तरबियत का फरोग वक्त की अहम तरीन जरूरत है। तलबा और तालिबात को तालीम के साथ साथ फनी तरबियत पर भी तवज्जो देनी चाहिए। गवर्नर पंजाब की अहलिया मोहतरमा परवीन सरवर ने गवर्नर हाउस लाहौर में गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बराए खवातीन का दौरा किया और इदारे में मुख्तलिफ शोबों में सिखाए जाने वाले हुनर देखे और उनके मयार को सराहा। बेगम गवर्नर पंजाब ने कहा कि इंसानी वसाइल की तरक्की और पेशा वाराना तरबियत का फरोग वक्त की अहम तरीन जरूरत है और तलबा और तालिबात को तालीम के साथ साथ फनी तरबियत पर भी तवज्जो देनी चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट बार में रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने के हवाले से महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। महफिल मिलाद में साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ख्वाजा मोहम्मद शरीफ समेत मर्द और खवातीन वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लाहौर हाईकोर्ट बार के कराची शहदा हॉल में सुप्रीम कोर्ट बार की साबिक नायब सदर इमराना बलोच की जानिब से महफिल मिलाद का एहतमाम किया गया। महफिल मिलाद में लाहौर हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस ख्वाजा मोहम्मद शरीफ खुसूसी तौर पर शरीक हुए। महफिल मिलाद में एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसीर भुट्टा, डिप्टी अटॉर्नी जनरल वकास कदीरदार, राना गफ्फार, अजहर सिद्दीक समेत मर्द और खवातीन वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुलहाए अकीदत पेश किया। क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल एंड कॉलेज में मुकाबला हुस्न किरात और नात का इनेकाद हुआ जिसमें लाहौर भर के स्कूलों से 62 तलबा ने हिस्सा लिया। तफसीलात जानते हैं जुनैद रियाज से। शादमान में वाक़े क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल एंड कॉलेज में मुनक्कद होने वाले मुकाबला हुस्न क़रात व नात में इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इस्लाम पंजाब यूनिवर्सिटी के चेयरमैन डॉक्टर महमूद अल हसन ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौका पर क्रिसेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल के वाइस प्रिंसिपल निसार मोहम्मद भट्ट और आरिफ चौधरी भी मौजूद थे। मुकाबला हुस्न क़रात व नात में राना उस्मान कसूरी, उबैदुर रहमान, कारी वकार अहमद और जियाउर रहमान ने जजिस के फराइज सर अंजाम दिए। महफिल मिलाद में हिस्सा लेने वाले तलबा और तालबात ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुलाए अकीदत नछावर किए। के मलबूसात तैयार कराना किसी झंझट से कम नहीं और अगर यही मलबूसात किसी डिजाइनर से बनवाना पड़े तो मसला और भी गंभीर हो जाता है। लेकिन अब लाहौर में हुई एक ऐसी ब्राइडल कलेक्शन लॉन्च जो रेडी टू वेयर है। तफसीलात जानते हैं मुकरम करीम की इस रिपोर्ट में। क्यूटन एंसेंबल में लॉन्च की गई नामवर फैशन डिजाइनर फहद हुसैन की ब्राइडल कलेक्शन। अब एक ही छत तले उनकी तैयार करदा ब्राइडल कलेक्शन न सिर्फ देखने को मिलेगी बल्कि ब्राइडल ड्रेस मौके पर खरीदा भी जा सकेगा, जिससे डिजाइनर से अपॉइंटमेंट लेने से ड्रेस के फाइनल होने तक के तमाम मराहिल से छुटकारा मुमकिन होगा। सब लोगों को फर्क अपॉइंटमेंट्स लेनी नहीं पड़ती। आप यहाँ आ सकते हैं, आपको कपड़े पसंद आए आप हमारे पास आ सकते हैं, डायरेक्टली एंसेंबल के थ्रू यहीं पे बुकिंग करा सकते हैं। लाइक आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं काम करने के लिए। इस इवेंट पर फैशन में दिलचस्पी रखने वाले अफराद की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मॉडल्स ने फहद हुसैन के डिजाइन करदा अरूसी मलबूसात को पहनकर खूबसूरत कैट वॉक तो की ही, वहीं इन अरूसी मलबूसात के रंगों और कट्स को बेहद सराहा। जैसे मैंने आज पहना हुआ है और आपको देखने में शायद बहुत हैवी लग रहा है बट इट्स नॉट लाइक दैट। बहुत मतलब अच्छे हैं, मजे के हैं, आप पहन सकते हैं। बड़े अच्छे कलर्स हैं, बड़े डिफरेंट कलर्स ट्राई किए हैं, ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट फहद हुसैन। ब्राइड के लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो कंफर्टेबल हो और लाइट कपड़े हैं एंड कलर कलेक्शन इज़ रियली गुड।
فہد حسین کے انسامبل کے پلیٹ فارم پہ اپنی برائڈل کلیکشن لانچ کرنے سے ان لوگوں کو یقیناً ضرور فائدہ ہوگا جن کے پاس وقت کی کمی ہے لیکن اس کے باوجود وہ اچھے اور معیاری کپڑے خریدنے کے خواہش مند ہیں. کیمرامین شعیب صفدر کے ساتھ مکرم کلیم، سٹی فور. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے حکومت سرمایہ کاروں اور تاجروں کو سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں. چودھری محمد سرور سے فروٹ اور سبزی منڈی لاہور کے صدر چودھری ظہیر احمد کی قیادت میں 14 رکنی وفد نے گورنر ہاؤس میں ملاقات کی. اس موقع پر گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ سرمایہ کار اور تاجر ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. تمام تر مشکلات کے باوجود کاروباری سرگرمیاں جاری رکھنا قابل ستائش ہے. انہوں نے کہا کہ صنعت کار اور تاجر قومی سوچ اور اجتماعی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اپنے شعبوں میں خدمات انجام دیں. پاکستان انڈسٹریل اینڈ ٹریڈرز ایسوسی ایشنز فرنٹ کی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ صنعتی ترقی کے لیے فیاف اہم کردار ادا کرتا رہے گا. گلبرگ میں فیاف کے ایگزیکٹو کمیٹی ممبران کے اجلاس کی صدارت چیئرمین فیاف طاہر ملک نے کی. اس موقع نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا.